Hello student. Today we'll start with new topic, that is theory base of accounting. In this unit we'll try to understand the rules, guidelines while you prepare account. You have to follow rules and guidelines. So all this we'll discuss in this unit, that is theory base of accounting. Now theory base of accounting are divided into two parts. One is accounting concept, principle and conventions. This is the first part, and the second part is accounting standard. So today our topic, this one, first part, accounting concept, principle and conventions. So we'll try to understand this one. First, accounting principles. What does it mean? Accounting principles, concept and conventions are commonly known as generally accepted accounting principles. In short form, GAAP, G-A-A-P. GAAP means generally accepted accounting principle. That means what? Accounting concept, accounting principle, accounting conventions. If these three combine together, then it is commonly known as generally accepted accounting principle or GAAP. So what is meant by accounting principles? Accounting principles are the basic rules that define the parameters. Parameter means boundary. And constraints. Constraint means that is the limitation within which accounting operates. So when you'll do account within the boundary, that is, you have to follow those rules are made for account. That rules you have to follow. Those guidelines you have to follow while you prepare account. Accounting principles are the guidelines for preparing financial statements. Okay? That means accounting principles are rules of accounting to maintain uniformity. And all these rules and guidelines are made by, that is, Institute of Chartered Accountant of India, short from ICAI. Okay, so student, what is meant by accounting principle? If I say accounting principle are the rules and guidelines adopted for what? Recording and reporting of the business transaction. That means what? So we know that each and every transactions maintains the records of the business, and also they prepare various accounting statements. So while they will prepare reports, they have to follow rules and guidelines to maintain the uniformity. Okay, so this is about accounting principles. Simply you remember the rules, guidelines. While you prepare account, those rules you have to follow. Okay, now accounting principles are the guidelines for preparing financial statement. Already you have done. Now these principles are classified, that is accounting principle. Accounting principle is also known as, that is, generally accepted accounting principle. Okay, so accounting principles are classified into two categories. That is, one is accounting concept, another one is accounting conventions. Accounting meaning or definition you already learned, right? The accounting concept what, and accounting convention what. Okay, you try to understand. So now you see the meaning of accounting concept. Accounting concept means what?
accounting concept, these are the basic assumption which are presumed to have been followed in preparing the annual reports. Okay, these are the assumption. Concept means assumption here. Okay, what does it mean? So accounting concept are those basic assumption and conditions on which accounting is based. That means what? Our accounting system is based on certain assumption and conditions which are need to be followed while preparing financial statements or annual reports of the business. It is important to follow the accounting concept because it enables the users of financial statements to understand them better and in the same manner. Got it? These are the explanation about accounting concept. Now there are different types of accounting concept that we'll discuss now. Now what is meant by accounting convention? कन्वेंशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब तो सबको मालूम है. कन्वेंशन का मतलब क्या है? जब आप अकाउंटिंग करते हो तो उसमें जो आउटकम निकाल के आता है उसे हम लोग कन्वेंशन कहते हैं. गॉट इट? दैट मीन्स व्हाट? अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स व्हाट? इट इज द आउटकम है ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. आप जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते हो और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड, और प्रिंसिपल को फॉलो करते हो कौन? बाय द एंटरप्राइजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन. व्हाट डज इट मीन? अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द customs and tradition which are followed by the accountants as a guide in the preparation of the financial statement of a business. Okay, so this is about accounting concept and accounting convention. मेरे ख्याल से समझ में आया होगा. अभी अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, इस कौन कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और कौन कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, ठीक है, कि हम लोग पढ़ने वाला है अभी. वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में आता ही आता है एक क्वेश्चन. तो सी हियर, अकाउंटिंग कंसेप्ट, यू कॉल अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumption और प्रिंसिपल सेम थिंग. अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग assumptions और अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम थिंग. ओके, फर्स्ट concept is known as business entity concept. Business entity concept is also known as accounting entity concept, and also it is known as separate entity concept. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो या एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, बात एक ही है. व्हाट डज इट मीन? सी हियर स्टूडेंट, these things already I have given explanation in my previous video. So again we'll try to understand. What does it mean? According to this concept, what does it mean? Business and owner are treated as separate person. According to this concept, business and owner both are separate to each other. Accounting is done from the point of view of business. So whenever you will do account, you think you are a business. Okay? The accounting is done from the point of view of business. Owner is treated as creditor of the business, right? So business transactions therefore are recorded in the books of account from the business point of view, not from that of the owners. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? बिजनेस का जो ओनर होता है, एक तरफ होता है बिजनेस और एक तरफ होता है ओनर, ठीक है. तो अकाउंटिंग में ये माना जाता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ओनर एक सेपरेट है और बिजनेस एक सेपरेट है. हालांकि वो बिजनेस उसी ओनर का है, लेकिन अकाउंटिंग में ओनर को सेपरेट माना जाता है और बिजनेस को सेपरेट माना जाता है. बिजनेस क्या करता है? ओनर से पैसा लेता है एज ए कैपिटल. एक ओनर जो होता है वो बिजनेस में जो पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल. लेकिन बिजनेस ओनर को एक आउटसाइडर मानेगा,
ठीक है, आउटसाइडर माने घर का आउटसाइडर है। बाहर का आउटसाइडर मतलब कौन? जैसा मान लो बैंक से बिजनेस ने लोन लिया तो वो आउटसाइडर हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और मालिक जो है, मालिक अगर अपना ही बिजनेस में जो पैसा, अपना बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, लेकिन बिजनेस के लिए वो इंटरनल लाइबिलिटी है। अगर वही बिजनेस बैंक से अगर लोन ले रहा है दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहां में हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेगा वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा हमेशा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए ओनर को एक आउटसाइडर मतलब क्रेडिटर माना जाता है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी का मीनिंग है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलो, सेम थिंग। व्हाट डज इट मीन? ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली recorded in the books of account. Transaction and events that cannot be measured in the terms of money are not recorded in the books of account. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोल ही दिया ये मैं, मनी, जिस ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को आप मनी में मेजर कर सकोगे उसी को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स मनी में मेजर नहीं किया जा सकता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, या एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है बिजनेस इज सेपरेट, ओनर इज सेपरेट, बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। ठीक है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करना। ओके, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या इसे कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। व्हाट डज इट मीन? इन दिस कॉन्सेप्ट द assumption is made that every business is carried on with a view to continue for an indefinite period of time. आप आज एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका मन में क्या चल रहा होगा कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और मन में सोच रहा है कि आप काल बंद कर दो इस बिजनेस को। ऐसा कभी होता है? हम लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है हम लोग ये मान के चलता है, एजम्पशन, हम लोग ये मान के चलता है कि ये बिजनेस अनंत काल चलता रहेगा, इनडिफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, इसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो उसे बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट डज इट मीन? द एसेट इज recorded in the books at cost price. Okay, the cost of acquisition is related to the past, hence it is known as historical cost concept. तो इसका मतलब क्या है? The asset is recorded in the books at cost price. जो एसेट है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जब करेगा तो कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रिलेटेड टू द पास्ट, इसीलिए इसको हैंस इट इज नॉन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो आपका पास एक जमीन है, एक लैंड है, मान लो 5 years पहले आप उस लैंड को परचेज किए हो सपोज 10 लाख रुपीस में। ठीक है, आज 5 years हो गया, 5 साल का बाद इसका मार्केट वैल्यू है सपोज 20 लाख। ठीक है, तो आप उस लैंड को जितना से परचेज किए हो दैट इज कॉस्ट प्राइस, लेकिन आज 5 साल का बाद इस मार्केट का वैल्यू क्या है? 20 लाख। क्वेश्चन नाउ अराइज हियर, आप कौन सा वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट प्राइस को, जितना से आप खरीदो वो वाला प्राइस को, या आज जो मार्केट वैल्यू उसका उस प्राइस को? तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो एसेट है वो आप जितना से परचेज किए हो वो कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में।
ठीक है, इसीलिए ये द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रिलेटेड टू द पास्ट लिखा है। ठीक है, आप पास्ट में 5 years पहले आप उस लैंड को परचेस की हो तो ये पास्ट हो गया ना। आज इसका वैल्यू है 20 लाख। ठीक है, तो आपको 20 लाख नहीं लिखना है, आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, मतलब 5 years पहले इसका कॉस्ट कितना था। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, जितना से आप परचेस किया है एसेट को, ठीक है, वो प्राइस आपको लिखना है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट डज इट मीन ड्यूअल एस्पेक्ट? ड्यूअल मीन्स डबल, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट हैज टू एक्सपेक्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक ट्रांजेक्शन का 2 एक्सपेक्ट होता है, 2 साइड होता है, 2 अकाउंट होता है। ठीक है, दैट इज ए डेबिट एंड ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। मैंने समझाया था पहले कि एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड आउट किया है तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दोनों का अमाउंट क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा जाता है? मैंने कहा था डेबिट, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? दैट इज डेबिट, और राइट हैंड साइड को क्या कहा जाता है? क्रेडिट। और दोनों डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो 2 एक्सपेक्ट हो रहा है, एक हो रहा है डेबिट और एक हो रहा है क्रेडिट। तो मैंने ये एक इक्वेशन में भी समझाया था, जैसा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये 2 साइड हो गया, एक तरफ एसेट्स है और दूसरी तरफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो इसको कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोग ये नेक्स्ट चैप्टर में जाके सीखने वाले हो अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसे कहा जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मींस 2 एक्सपेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट के अमाउंट जितना होगा क्रेडिट के अमाउंट भी उतना होगा, दोनों साइड के अमाउंट इक्वल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, या एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जितना होगा राइट हैंड साइड का वैल्यू भी उतना ही होना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड accounting period concept. What does it mean, accounting period concept? The business will continue for a long period. मैंने पहले ही समझाया था कि बिजनेस जो होता है वो गोइंग कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कंटिन्यू होता है, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए। बट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। According to this concept, life of span enterprise is broken into smaller parts known as accounting period, so that its performance is measured. An accounting period is the interval of time, generally 1 year, at the end of which profit and loss and balance sheet are prepared. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? तो इससे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझता है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो स्टूडेंट, बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, है ना। अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग का बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो हर साल एवरी ईयर फाइंड आउट किया जाता है। ईयरली बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है। जैसा मान लेता है एग्जाम्पल लाइक 1 जनवरी, ठीक है, लेके 31 दिसंबर, मतलब एवरी 12 मंथ्स में हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करता है। तो जैसे मान लो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरे साल में हम लोग कैलकुलेट करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, यहां में जाके हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। क्या ईयर बोला जाता है इसको? कैलेंडर ईयर बोला जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में हम लोग इस डेट को फॉलो करता है, 1 अप्रैल सपोज 2020 से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च होगा 2021। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कितना मंथ्स हो रहा है? 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर। इसे अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। हम लोग जो भी बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करता है इसी अकाउंटिंग ईयर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कितना मंथ्स हो रहा है? 12 मंथ्स हो रहा है। तो इसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है, इसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है?
profit earned by business during a period can be correctly measured only when revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. It is not relevant when the payment was made or received. Therefore, due to this concept, adjustments are made for all outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance. This is called मैचिंग concept. इसका मतलब क्या है? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. जैसे मान लो ये अप्रैल 1 है. ठीक है, अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल 1. अप्रैल 1 से लेके नेक्स्ट ईयर कौन सा मंथ तक होगा? मार्च 31. ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मैं आपको पूछ रहा हूं, आप एक बिजनेस कर रहे हो और मैं पूछा आपको कि आप अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक आपका सेल कितना हुआ? तो आपने कहा कि 20,000. अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च 31 तक, मतलब पूरे 12 मंथ्स में आप कितना सेल किए हो? तो आपने कहा कि 20,000 मैंने सेल किया पूरे 12 मंथ्स में. ठीक है, आप खर्चा कितने किए हो? तो खर्चा सपोज आपने बोला कि मैंने 15,000, यहां से लेके यहां तक मेरा 15,000 खर्चा हुआ है. ठीक है, और सेल्स से जब एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो जो निकल कर आ रहा है दैट इज योर प्रॉफिट. ठीक है, दैट इज योर प्रॉफिट. इसे मैचिंग कंसेप्ट कहा जाता है. लेकिन कुछ और बात है इसमें. जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो आपने अप्रैल 1 से लेके मार्च 1 तक सेल किया, कितना? 20,000 रुपीज. और आपने खर्चा कितना किया है अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक? 15,000 रुपीज. लेकिन एक बात है, आप जैसा मान लो आप गुड्स परचेस करते हो, ठीक है, और उसका पेमेंट करते हो. तो आप जैसा मान लो अप्रैल 1 में आप गुड्स परचेस करते हो और नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर देते हो सप्लायर को. ठीक है, क्रेडिटर को. इसी तरह अप्रैल में परचेस कर रहे हो गुड्स और मई में पे कर रहे हो. फिर मई में परचेस कर रहे हो, जून में पे कर रहे हो. ठीक है ना, जिस मंथ में आप परचेस कर रहे हो उसका नेक्स्ट मंथ में आप पे कर रहे हो. इसी तरह आप मार्च में गुड्स परचेस किया, लेकिन इसका पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट मंथ, दैट इज अप्रैल. इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर आ गया है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया. ठीक है, तो वो जो खर्चा है वो खर्चा आप नेक्स्ट ईयर में करने वाले हो, लेकिन वो खर्चा इसी ईयर का है. इसी ईयर का आपने गुड्स परचेस किया है, ठीक है ना, लेकिन पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर करोगे, दैट इज अप्रैल 1 में. ठीक है, तो आपने कहा कि मैंने अप्रैल से लेके फरवरी तक मेरा जो खर्चा हुआ वो कितना? 15,000 खर्चा हुआ. ठीक है, लेकिन मार्च में मैंने गुड्स परचेस किया लेकिन पेमेंट अभी तक किया नहीं, वो मैं अप्रैल में करने वाला हूं. ठीक है, तो आप अगर 15,000 लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो आप पेमेंट करते हो 2,000 रुपीज. ठीक है ना, 2,000 रुपीज अप्रैल में पेमेंट करने वाला हो, तो आप ये 15,000, ये जो 15,000 है मतलब ये अप्रैल से लेके फरवरी तक है 15,000 रुपीज. और मार्च में आप गुड्स 2,000 रुपीज का परचेस किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, वो नेक्स्ट मंथ में करेगा आप. ठीक है, तो उस 2,000 को भी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो 2,000 इसी ईयर का खर्चा है, इसी ईयर का खर्चा है. ठीक है, हालांकि आपने पेमेंट नहीं किया लेकिन वो खर्चा इसी ईयर का है, इसलिए उसको पकड़ना पड़ेगा. तो 2,000 मिलाने से कितना हो जाएगा? 17,000. तो कितना आ गया? 3,000. इसे कहा जाता है मैचिंग कंसेप्ट. इसका मतलब है कि इसे ये जो आप जो पेमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करने वाला हो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है. ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है आप अगर एडवांस खर्चा कर दिया. ठीक है, तो इसी तरह एक्रूड इनकम होता है, फिर इनकम रिसीव इन एडवांस होता है. तो दिस इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट. धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा. डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, फिर इसी तरह लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट या इसे रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहा जाता है.
In accounting, income or profit means excess of revenue minus expenses, right? रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देते हो तो दैट इज योर व्हाट, इनकम या प्रॉफिट. रेवेन्यू मीन्स आप गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है ना, आप गुड्स को सेल कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो इससे आप जो भी जनरेट कर रहे हो पैसा, इनकम, दैट इज योर रेवेन्यू. तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. द रियलाइजेशन कंसेप्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू. देखो, रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ से और सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड होता है. तो द रियलाइजेशन कंसेप्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, नॉट टू द एक्सपेंस. तो इस कंसेप्ट का हिसाब से क्या है, क्या से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड है. ये बात याद रखना. दिस कंसेप्ट स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर एक्चुअली रियलाइज. जो पैसा आपको मिला है और जिस दिन मिला है आपको उसी को रियलाइज करना है. दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट. ओके.